scene to shoot in a film like this? It was the kissing scene. It was directed to Miss Sonali though. Exactly. Only Miss Sonali, the new one. First, get your color straight. What pink is that? Is it magenta, girls? What pink is it? What pink is it? Somebody. Somebody. Is it hot pink? Is it cold pink? Which pink is it, baby? It's my pink. Sonali, sorry. Answer. So I was actually going to establish a lot of rules here. Can I talk about a scene? Sir? Can I talk about a scene? I want to know which scene was the most challenging. And then Karthik has already answered on my behalf. The kissing scene. I think I'll stick to that. But see, Sunny here, Chokka here, is a very sweet and a very shy boy. And he's extremely lovable. So I had to do some cajoling to do the kissing scene. I was the one. R star P I N G. So yeah. Alright. So, Karthik, you did a monologue in the first film. Me, right? Okay. You did a monologue in the first film. Yes, I did. And it went viral. So, is there anything similar in the second film, and could we get a glimpse of it? I think you just saw the glimpse of it in the trailer. Did you like it? तो प्रॉब्लम ये है कि आप सब लड़कियां हैं. प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये आप सबकी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन ये देखने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा. मैं आपको पिछला जो पुराना वाला हमारा मोनोलॉग है वो सुना सकता हूँ अगर आप लोगों को सुना. You guys like that? We don't know if you would like that. Would you like that? I think you love that. Go ahead. So, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बेसिकली अरे मैं नया वाला बोल रहा था. Looks like the girls did get the better of you. But I think it was bullshit scene. उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए because isn't this exactly what you want? Seriously यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं. 6 महीने में I've had it all, सब देख लिया मैंने. अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियां. रिलेशनशिप का मतलब होता है एंड योर ओन हैप्पीनेस. इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इट उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था. Thank you. So, that was really awesome, guys. Thank you so much for that. Now, we're going to have a little fun with you guys. Just a little bit of fun. So, it's a question that, like a debate that has been going on since forever, since the beginning of time. We need 3 girls and 3 guys to come up on stage here with us, with the cast, with the director and with the producer, and tell us, love, for or against. And I can't see any boys. Can you guys Where are they? make yourselves known, please? We need 3 of them. We need 3 of Three of them. Whoever wishes to come, please come on stage. You come up. Guys, 2 more. I see. नहीं, ये इनका तो देवदास वाला हाल हुआ है. ये मैं जानना चाहता हूँ. वो कितने की? नहीं. So, can we have the girls on the right and the boys on the left? Because like girls always right. ये क्या चलता है दुनिया में यार? ये क्या चल रहा है? फ्रस्ट्रेशन पूरा एक्सप्रेस हो रहा है हमारा. ये सिर्फ हम ही समझते हैं. Are you single? Are you single? मत पड़ना चक्कर में. That's me, Sagad. You should try saying it a few more times to her that you do love her. Maybe then you won't.
it's not like that. See, that is what I was trying to explain it to each and everyone over here. Love is something that isn't supposed to be acquired. You love someone, those are your feelings. Keep it to yourself. You love someone, you express someone. You just भाई हमारा काम है चुप रहना। इससे ज्यादा मत बोलो, बहुत चोट खाया भाई। ये रो रहे हैं यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर। हाँ प्लीज। If you won't express a girl your love, how will she know that you really love her? Because apparently, I'm way too much afraid to jeopardize my relationship with that person. If she gets to know, I don't know, she might not talk to me even. So I'm still a little bit concerned about it. So I'm like a little concerned in that one. But at least she should know, right? थोड़ा intense हो गया, थोड़ा सा. Alright guys, did you guys like having them here? Are you guys gonna go watch the movie? Yes! Are you for or against love? I'm against love, like really hardcore against love. Okay, so Rahul, who's Rahul? Confessing in front of these many people, I was in a relationship, not that long, like a 5-6 year relationship. Not that long. So it got so crazy by the end of the time that we were about to finish that we were friends since childhood, and it ended on such a bad note that I regret that why did I fall in love with him. So by the end of every relationship it becomes so I don't know, insane that both of you just don't want to look at each other, and it becomes really awkward for you to meet the next time. So love is pretty crazy that way. I want to ask you whose fault was it? लड़के की हो, पक्का लड़के की हो. It was mutual. It was mutual. It was mutual. Right. No. It was mutual. I'm confessing it was mutual. Actually, we get heartbreaks in love, but all 5 fingers are not the same. Maybe it may be some other's fault also. Guys, we need to calm. We need to calm down now. Calm down. I want to ask you guys, you like the trailer? सब लड़कियों को भी अच्छा लगा? 16th October, प्यार का पंचनामा 2, सब देखने जा रहे हैं? Thank you. See you there then. So, like, from that Thank you so much for having us here. Keep up the noise! there is one thing I took away from that debate, if it wasn't obvious already. Why love is injurious to health. Totally, really. You So, deserve it, man. we've got some stuff we'd like to give you. We've got some stuff they'd like to give you. So, wow, I can see someone fangirling there already. Guys, think we love you! Guys, think we love you! Alright. We love you! Please, I'm going to give my husband to you.
ट्रेलर देखा हमने, काफ़ी पसंद है और लोगों को भी काफ़ी पसंद आया। हमें भी बहुत पसंद है, वी लव इट। क्या बॉलीवुड से क्या कुछ आया है, लोगों को कैसा लगा ट्रेलर बॉलीवुड से? हाँ, ये कैसा एक दिन में ही वी हैव हाउ मेनी 1 million views, more than 1 million. अब खुद की बड़ाई नहीं करते, इट्स ओके, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, But everyone's loving it. Tell us something about your character first of all. इस बार थैंकफुली मेरा कैरेक्टर इतना मेरे दिमाग में तो पहला वाला भी नहीं था, बट मैं फिर भी बोल देती हूँ, इतना ज़्यादा मीन नहीं है। आई एम वेरी स्वीट एंड लवेबल, जैसे आपने देखा है ट्रेलर में, बट इन स्पाइट ऑफ दैट लड़कों को पसंद नहीं आती मैं। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ चिकू, शी इज़ ऑपोजिट गोगो हु इज़ कार्तिक इन द फिल्म, एंड इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, शी इज़ जस्ट स्वीट, या स्वीट, उसकी खुद की दुनिया है, वो उसमें जीती है, बहुत खुश है, एक बहुत प्यारा सा बॉयफ्रेंड जो उसके लिए सब कुछ करता है, एंड उसी वजह से वो उससे बहुत 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 प्यार करती है। एंड और क्या बोलूँ, हाँ बस हो गया, इतने ज़्यादा लड़कियों का इतने ज़्यादा कैरेक्टर है ही नहीं। तो मेरा कैरेक्टर कुसुम का है, और यार प्यार करना एक बहुत बेसिक सा फंडा होता है कि तुम्हें प्यार दिखाना चाहिए, प्यार करना आना चाहिए, लेकिन जब लड़कों को प्यार करना आता ही नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो मैं पूरी फिल्म में उसको बस प्यार करवा रही हूँ खुद से, लेकिन अब वो करता ही नहीं है, तो आई कांट हेल्प इट ना। बॉयज़ आर बॉयज़, व्हाट टू डू, पुअर गर्ल्स, दैट्स ऑल। आपका भी कुछ यही मानना है कि कुछ अलग थॉट्स है आपके? नहीं, अलग तो मतलब है, बिकॉज कैरेक्टर अलग है, लास्ट टाइम से भी अलग है, इनसे भी अलग है। सुप्रिया बहुत ही सिंपल स्वीट, कुछ मैनिपुलेटिव नहीं, ऐसा उसका कुछ प्लान नहीं है कि मुझे बॉयफ्रेंड लेके ये करना है। सो उसको प्यार होता है एकदम प्योर लव, एंड जस्ट दैट्स इट, एंड द स्टोरी गोज। सो या आई थिंक शी इज़ रियली इन लव विद चौका, टोटली। फर्स्ट पार्ट वाज अ बिग हिट, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है इस फिल्म से क्या? I think somewhere it's good, right, and somewhere it's challenging because expectations बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आई थिंक लोग पिछली वाली फिल्म को इस ट्रेलर से कंपेयर कर रहे हैं। फिल्म तो जब आएगी वो वैसा कैनवस है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज एज someone who's starting out in the industry, I think it's an amazing and very very encouraging response, and response really has been fabulous. एंड टू बी ऑनेस्ट, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्यार का पंचनामा वॉज अ मच अवेटेड सीक्वल। बहुत लोग जिनसे मिलती थी वो सब मुझे ये पूछते हैं कि सवाल कब आएगी नेक्स्ट। तो इवन बिफोर वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट वी विल मेक दिस मूवी, पीपल वांटेड टू सी इट द पार्ट 2। सो या वी रियली हैड फन, और इनफैक्ट वी गॉट सच अ वार्म रिसेप्शन, मतलब एक दिन में 1 million व्यूज़, सेज इट ऑल। तो आई थिंक सो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, और ट्रेलर आने के बाद पीपल आर रियली एक्साइटेड, तो वी वेरी हैप्पी दैट वी गेटिंग दिस रिस्पॉन्स। सो या ऑल गुड। एंड ऑब्वियसली बात है कि बिकॉज ये एक पार्ट 2 है, तो पीपल कंपेयर करेंगे पार्ट 1 से, बट आई वुड स्टिल लाइक टू से कि लुक एट इट एज अ फिल्म, क्योंकि हमारी कहानियाँ अलग हैं, हम कैरेक्टर्स सब अलग प्ले कर रहे हैं, इवन द फैक्ट दैट हम सेम लड़कियाँ पार्ट 1 से पार्ट 2 में हैं, बट हम फिर भी एवरी कैरेक्टर अलग है। सो आई वुड स्टिल लाइक टू से कि एन्जॉय इट फॉर वॉट इट इज़, एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू एंटरटेन यू, बट या लव आवर न्यू कैरेक्टर्स ऑल्सो अ लॉट। बट एक बात की 100 बात पता तो 16 अक्टूबर को चलेगा, जिसके लिए आप लोग को फिल्म आना पड़ेगा। तो 16 अक्टूबर को आके अपना पंचनामा करा लो। फाइनली उसको कुछ अपने कुछ कहना चाहते हो के बारे में, एंड कमिंग वर्क एनीथिंग यू वांट So just like say, girls are the best. That they'll know on 16th of October. So all of you, please come and watch our film. And I'm sure आपको भी उतना ही वेट होगा आने का जितना हमको आपको बुलाने का है. तो please come to the theaters on the 16th of October and do watch it in the cinema on the 16th of October. And I'm sure you will love it. You will enjoy it because we enjoyed making it. So you'll enjoy seeing it. And even if you don't come, हम on screen और off screen दोनों screen पे punch कर सकते हैं. So do come. So basically whether you believe in love or you don't. If you believe in love, please come watch our film. If you don't believe in love, all the more come watch our film. So just come watch our film on 16th of October. Yes. For all those who are in love and who are not in love, you need to come and see what love is all about. So punch to all who don't come, right? So I'd rather punch the boys. Okay, punch to all the boys for not coming if you don't plan to come. But yeah. So please, everybody, do come and watch a film.
Great. Thank you. Thank you. So much. Okay. फर्स्ट पार्ट लोगों को काफी पसंद आया और रिसेंटली ट्रेलर भी काफी पसंद आया लोगों को। क्या रिस्पॉन्स मिला आप सभी को? रिस्पॉन्स अच्छा है, वी आर वेरी एक्साइटेड और बाकी आप पिक्चर देखें तो आपको पता लगेगा। इट्स वेरी एंटरटेनिंग और कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट पहले से, तो इट्स वी जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई थिंक यार एक्साइटमेंट लेवल हम सबका बहुत ज़्यादा है और फिल्म का ट्रेलर काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद, सभी को पसंद आ रहा है जितना रिस्पॉन्स अभी तक आया। एंड ऑडियंसेस दे हैव लव्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्यार का पंचनामा। आई फील प्यार का पंचनामा 2 का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर का, उसी हिसाब से लोग भी थिएटर में आने वाले हैं एंड दे आर गोना लव इट बिकॉज while shooting also we had a lot of fun and हमें पता है कि कहाँ पे क्या कितने पंचेज हैं, कितने लोग रिलेट होने वाले हैं, कितने लोग के ब्रेकअप्स होने वाले हैं। सो प्यार का पंचनामा 16 अक्टूबर को आप ज़रूर देखिएगा। Tell us something about your character first. We'll start with this. Well, I am playing the character of Thakur. Okay, so he's a completely different and fresh character altogether. Nothing to do with the part 1. It's, you know, like we all three are playing different and fresh characters. So yeah, he's got his own journey of love and his breakup. So it's interesting. He's playing a different character altogether, and yeah, for the rest of it, you'll have to come and watch the movie. I'm not allowed to speak much about the story. लेकिन ठाकुर ये नाम ठाकुर एक एक्चुअली ठाकुर ये बात है कि क्या होता है, लड़के हम जो होते हैं तो यूजुअली हम हमारे दोस्तों में एक पेट नेम होता है जब हम आपस में यार बात करते हैं। तो मेरा फिल्म में नाम एक्चुअली तरुण है, लेकिन बिकॉज हम बॉयज साथ में रहते हैं और इतने सालों के दोस्त हैं तो ये सब मुझे ठाकुर बुलाते हैं। और हाँ, तो दैट्स वाई ठाकुर। आप कुछ तरुण नाम था पूरी फिल्म में ठाकुर ही बुलाया। आपका कैरेक्टर सेम है या दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर? नहीं, अगेन जैसा उनका वो सेइंग कि ये सारे फ्रेश कैरेक्टर्स हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, रिलेशनशिप में कैसे पढ़ते हैं, इन दोस्तों की कैसी बॉन्डिंग है। ये बिल्कुल ही अलग फिल्म है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम है कि कैसे रिलेशनशिप में लग जाती है इन तीनों की भी। एंड इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर। माई कैरेक्टर नेम इज़ गोगो एंड उसका रियल नाम अंशुल है लेकिन उसका भी पेट नेम जैसे ये लोग सब लोग बुलाते हैं मुझे, वो गोगो बुलाते हैं। एंड रेस्ट उसके कैरेक्टर के बारे में जैसे जैसे फिल्म के ट्रेलर और फिल्म के टीजर्स वगैरह ज़्यादा आने लगेंगे आपको पता लगने लगेगा। बट या इट्स अ लवेबल कैरेक्टर एज द फर्स्ट वन वॉज एंड यू गोना लव इट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में तो आप थे, सेकंड पार्ट में भी आप हैं जी। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, डिफिकल्ट रहा क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 2 को एक्टर्स थे आपके साथ, दिस टाइम इट्स कंप्लीटली न्यू, तो एनीथिंग यू जस्ट थॉट कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कि मतलब हम लोग ने जितना अभी तक जितना शूट किया, जितने हम लोग के वर्कशॉप्स हुए थे शुरू में, एंड जो फ्रेंडशिप जो बॉन्ड हम लोग को तीनों का मतलब बना है, सन्नी ओमकार मेरा, वो काफ़ी मतलब काफ़ी 1.5-2 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। मतलब अब मैं पुराना वाला मेरे को रज्जो याद आता तो वो बहुत ऐसा लगता है बहुत पहले था। एंड विच इज़ व्हाट आई लव अबाउट इट कि एक जर्नी है और जो जर्नी हम सब ने साथ में स्टार्ट की है एंड सबको अच्छा लग रहा है, जो भी लोग देख रहे हैं। देखिए, अगर ट्रेलर में फ्रेंडशिप नहीं दिखे, फ्रेंडशिप नहीं हो तो वो वाइब ट्रेलर में नहीं आएगी ना फिल्म में आएगी, विच इज़ वॉट इज़ सीन, विच इज़ वॉट एवरीबडी इज एंजॉइंग इन द फिल्म राइट नाउ। एंड तो हाँ, मुझे मज़ा आ रहा है
कि फर्स्ट वाली में भी उतना ही मज़ा आया था जितना सेकेंड वाली में, और बड़ा और बेटर और फनी है ये फिल्म, एंड आई एम रियली लाइकिंग द होल एक्सपीरियंस। आई एम प्लेइंग चौका। चौका बहुत अलग नाम है और काफ़ी डिफरेंट है पहली पिक्चर से। वी हैड फन शूटिंग, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, हमें बहुत मस्ती ही है, हमने काफ़ी कुछ किया है, और बाकी आपको तो पिक्चर देख के पता लगेगा। और द बेस्ट पार्ट इज वी हैव दैट द ब्रदरहुड, दैट वाइब्स, द बॉन्ड, जिससे कि हर चीज़ इतनी आसान हो जाती है कि आपको लगता है कि आप एक्चुअली यार we are together, we are living in the real life, we are also there together, we have that bond also, like it's रूममेट्स ही लगते हैं। हाँ, रूममेट्स साथ। और बाकी बहुत फन है, बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर है। आप प्लीज आइए, अपना टाइम निकालिए और प्लीज आइए। प्यार का पंचनामा 2 16 अक्टूबर, भूलेगा नहीं। तो रियल लाइफ से कितनी इंस्पायर्ड है? रियल लाइफ I think जैसा the most beautiful part about, even when I saw the प्यार का पंचनामा, was the beautiful part was about the fact that बहुत relatable थी फिल्म, और आपको इस पार्ट में यही लगेगा कि ये बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं। हम लोग हम सबके अपने अपने दोस्त होते हैं, कुछ एक चाइल्डहुड बडीज होते हैं, जैसे हम एक घर में साथ में इतने सालों से रहते हैं, तो वो एक फैक्टर होता है जो लोग ऑडियंस कनेक्ट करती है उस चीज़ से। और सिमिलरली जो मतलब स्क्रू अप्स होते हैं इन रिलेशनशिप्स, वो सब आज की तारीख में यंग जनरेशन में हम सब फेस करते हैं, अपने अपने किसी के अपने इश्यूज होते हैं। तो एंड सिंस आवर स्टोरी इज आल्सो लिटिल मोर एवॉल्व, लाइक अ डायरेक्टर सेड कि हम लोग अब वी आर दोज पीपल हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज एंड वी हैव गॉट आवर रिस्पेक्टिव जॉब्स एंड वी आर वर्किंग एंड अर्निंग अ डिसेंट सैलरी, एंड एक अलग क्या बोलते हैं, एक पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स। सो वो चीज़ पे आपको आके फिल्म कैसे मतलब जर्नी कैसे सताती है आपको कि यार ये अच्छा ये भी होता है रिलेशनशिप्स में। तो अब लोगों को ये देखने बहुत मजा आएगा कि अच्छा आगे चल के ये भी होता है हमारे साथ। जो हमसे यंग है वो ये रिलेट करेंगे कि अच्छा ये वाले भी स्क्रू अप्स होंगे हमारे साथ आगे, जो हमारे हम उम्र है तो वो ये सोचेंगे हाँ यार ये तो मेरे साथ होता है। तो ये बहुत रिलेटेबल फैक्टर है आई थिंक, विच वर्क्स एंड विच विल वर्क फॉर अस ऑल्सो। आई थिंक वही इसका मेजर यूएसपी भी है कि सब लोग अपनी लाइफ से इसको रिलेट करते हैं इस फिल्म को। सब लोग को लगता है यार मैं शायद से चौका हो सकता हूँ, या मेरे साथ ठाकुर जैसा कुछ हुआ है, या गोगो जैसा कुछ हुआ है। इनफैक्ट लड़कियां भी रिलेट करेंगी इस बात से, क्योंकि इवन द कैरेक्टर्स तो क्या होता है तो आप रिलेट करते हो, तो आप पिक्चर देखें और रिलेट करें जो जिसके साथ हुआ है तो आपको पता लगता है। तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे अबाउट द फिल्म, कब रिलीज हो रही है, एनीथिंग यू वांट टू से? आई थिंक हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि आप लोगों ने पहली वाली फिल्म को इतना प्यार दिया, इतना उसको अभी तक प्यार करते हैं। प्यार का पंचनामा 2 उतना ही आप लोग देखने जाएं, उतना ही प्यार दें, और हम तीनों को, गोगो को, चौका को, ठाकुर को, आई एम श्योर आप तीनों को घर पे लेके जाएंगे 16 अक्टूबर प्यार का पंचनामा 2। I think it's best not to speak about. See, it's best not to speak about that. It's someone's feeling just happening today. It's too fresh. I think we shouldn't speak about that. I think it's irrelatable to the current topic that we have. No problem, guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.
सन्नाटा क्यों है? हम तो आपको शॉट पिला रहे थे, आप ही पीने राजी नहीं है। हम आज शराबी गाना हमारा लॉन्च कर रहे हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, आप देख सकते हैं। शराबी शराब है, शराबी शराब पड़ी है, शराबी गाना है, इंजॉयमेंट का गाना है, एकदम लोगों को मजा आ रहा है शराबी गाने पे। पहली बार आई थिंक इतना जोश वाला गाना बना है एंड आई एम श्योर लोग झूम रहे हैं, हम लोग तो झूम रहे हैं जब से सुना हुआ है। अभी तो शुरुआत है यार, आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। आप लोगों ने सुना, सबने गाना सुना कि नहीं, पहले ये Why this thought कि like एक हर एक जगह जाएंगे आप सिटी में और सब कवर करेंगे like different pubs, right? आई मीन ये हम लोग का एक फिल्म में, जैसे कि फिल्म भी लड़कों की फिल्म है एक तरीके से, कि लड़कों की कहानियां, उनके दर्द की कहानियां बताते हैं। तो इस ट्रिप के साथ भी या इस रेड के साथ भी हमारा वही मतलब था कि बॉयज नाइट आउट है ये, और लड़कियों के बिना हम लोग बाहर निकले हैं, थोड़ा बाहर निकले हैं मस्ती करने के लिए, मस्ती करनी है, शराब पीना है, और आज शाम के 8 बजे पे बंदा शराब ही पीता है। स्टार्स तो जो है वो हमेशा मतलब ऐसी किसी स्टेट में होता है, ड्रंकन स्टेट में होता है, तो कैमरा से दूर भागने की कोशिश करते हैं और आप लोग उसको प्रमोट। लेकिन हम तो पिला रहे हैं, आप पीने राजी नहीं। हम तो पिला रहे हैं, आप पीने राजी नहीं। लेकिन ये जो डेयरिंग है, मतलब इस तरीके का यूनिक कॉन्सेप्ट, मतलब एक तरीके से इस गाने जी, इसका क्रेडिट हमारी मार्केटिंग टीम का क्रेडिट है। लेकिन आप लोगों को कोई डर नहीं कैमरे के सामने इस तरीके से शॉट्स मारना और ये सब? हम कुछ ऊट बटान हरकत नहीं कर रहे ना उसके बाद हम नॉर्मल है, उसके बाद भी नॉर्मल है, और हम सिर्फ अपना गाना प्रमोट कर रहे हैं जो कि अच्छा लग रहा है सब लोग को, और हम लोग को भी अच्छा लगा है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट वाइज भी उसके साथ बैठ रहा है कि शराबी गाने का नाम है, तो शराबी है तो पी के भी शराब, अगर शराबी गाना गा रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, तो जो पहला पार्ट था वो बहुत पॉपुलर, बहुत सक्सेसफुल हुआ था, बहुत हिट हुई थी फिल्म जी। उसके बाद कहीं ना कहीं लगता नहीं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा है लोगों को दूसरे पार्ट से, उस प्रेशर को झेल पा रहे हैं या उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं, हमें जो अभी तक ट्रेलर आया है और ट्रेलर देखने के बाद जितने लोगों ने तारीफें ट्रेलर की भी की है, आई थिंक ट्रेलर आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग को पसंद ही आया है आई एम श्योर, तो किसी ने भी अभी तक उस ट्रेलर के बारे में कुछ नहीं बोला। सब लोग को जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, जो भी फनी वन लाइनर्स हैं, वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं, एंड ये एक अलग फिल्म है, सीक्वल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज वही है, बट 3 नए कैरेक्टर्स हैं, ठाकुर है, गोगो है, चौका है, और तीनों की अलग स्टोरी है। इसका उस स्टोरी से लेना देना कुछ नहीं है, बस हाँ ये है कि इन तीनों की भी लग रही, लड़कियों की लाइफ में आने से इनकी तीनों की भी लग रही, जैसे हम सबकी लगती है, जैसे हम सबकी लगती है, और फिर हम शराबी गाने में झूमते हैं क्योंकि वही हमारे पास एक मौका है झूमने का। तो What could have been an alternative title for this film? Alternative title? Team Devdas. देवदास। मेरे हिसाब से प्यार का पंचनामा जब पहली फिल्म में भी आई थिंक जब टाइटल सर ने सोचा था, तब बहुत लोगों को वो उल्टा लगा था, प्यार का पंचनामा क्या टाइटल है, लेकिन वो जब फिल्म आई, जब वो ट्रेलर आया, जब सारी चीज़ें उसके अराउंड हुई, वो काफ़ी लोगों के मतलब दिमाग में छप गया वो टाइटल कि प्यार का पंचनामा, मतलब पहली बार ऐसा टाइटल आ रहा था फिल्म का, और इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव मैं भी नहीं मतलब कोई नहीं सोच सकता। प्यार का पंचनामा आप सोचते हो सीधे ही आपके दिमाग में खट से मतलब सब दिमाग में आता है कि क्या हुआ है इन तीनों की लाइफ में और क्या 3 नए लड़कों की लाइफ में हो रहा है। अच्छा, ये जो टैगलाइन है, दारू सब पीते हैं हम थोड़ी ज्यादा पीते हैं जी, असल जिंदगी में कितना रिलेट करते हैं इससे? सर ये सबके साथ रिलेट करता है, बस जब दारू पीते तो कोई रुकता तो है नहीं। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है दारू पीने के बाद, मतलब जब वो जो ज्यादा पीने वाला? वो सारे इंसिडेंट आप फिल्म में देखेंगे जो 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है क्योंकि हमारा मोटो ही है, क्योंकि हम 3 दोस्त ऐसे एक साथ रहते हैं और क्योंकि हम चीज में बिलीव भी करते हैं कि दारू सारे पीते हैं, हम थोड़ी ज्यादा पीते हैं, तो वो चीज। एनी पर्टिकुलर फेवरेट कैरेक्टर्स इन फिल्म्स जो शराबी का कैरेक्टर जो आपको अच्छा लगा? मैं शराब पीता नहीं हूँ वैसे जनरली, लेकिन फिल्म में कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। इस फिल्म में नहीं, इन जनरल जो हमारी हिंदी फिल्में बनी है उनमें, इफ यू कैन एनेक्ट एनी ऑफ द। अरे ऐसे मत कराइए, वो बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, बहुत बच्चन साहब सर, अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हैं जब भी वो ऐसे रोल्स प्ले किए हैं, और इनफैक्ट उन्होंने जितने रोल्स आज तक प्ले किए हैं बहुत अच्छे प्ले किए हैं, बट आई थिंक आई कांट इनैक्ट लाइक हिम, एंड आई एम श्योर मैं ये ट्राई भी नहीं करना चाहता, ये चीज, ये ट्रैप में मैं फंसना नहीं चाहता। एनी फेवरेट डायलॉग शराबी का कोई आपका? फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द फिल्म और फ्रॉम शराबी? ये हमारा फेवरेट डायलॉग। इसके अलावा कोई और जो शराबी का ऐसा डायलॉग जो आपको?
तुझको जाना है तो तू घर पे तो घर पे जा तू काम मेरा बस करके आके आ तू. It's a lyrical song. It's a lyrical. Yeah. You can all jam up in. Sing. Again singing. जैसे मस्ती भरा गाना है ये एक ऐसा गाना है जो आई थिंक हमारी यूथ इस चीज से रिलेट भी करेगी बिकॉज हम सब यू नो वी ऑल हैव आवर फन टाइम्स वी ऑल वांट टू गो आउट वंस इन अ व्हाइल एंड वी नो वांट टू लेट यू नो लूज सो आई थिंक ये जब गाना बना भी था और ये चीज़ था तो वो यूथ को टारगेट में रखते हुए बनाया गया था और आई थिंक पीपल विल कनेक्ट टू इट स्पेशली द यंग पीपल विल कनेक्ट टू क्योंकि हर कोई ये बोलेगा यार ये तो मेरी तरह तो वो चीज़ है इस गाने के बारे में.
बार सुने थे तो हम लोग खुद झूम उठे थे। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लोग जिस दिन बाहर में जा रहे हैं, जिस दिन लोगों के साथ यहाँ पे प्रमोट करने के लिए गाने को जा रहे हैं, वहाँ पे सब लोग झूम रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे अलग से खाने या पीने के लिए आए थे वो लोग भी यहाँ पे हमारे साथ गाना सुन के झूम रहे हैं। तो वी आर रियली हैप्पी विद द रिस्पांस। जब तीनों बॉयज नायिका के लिए निकले हैं तो आपकी जो बाबू हैं तीनों की वो इससे कंप्लेन नहीं, मतलब आपको नहीं लगता ये आपको ट्रबल है और क्या चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता आप तीनों के लिए बहुत बड़ी ट्रबल होने वाली, जो उनको इस बात का पता चलेगा? पता नहीं चलेगा, वो हम पता नहीं लगेगा, जो भी होता है बस चांस ले लेने का, लाइफ में इतना सोचने का नहीं, चांस ले लेने का। और एक बार शराब बंदा ऑर्डर बंदा सोचता है अगर आदमी अकेले में खुला सांड होता है तो फिर नहीं, लेकिन शायद वो भी ये बात सुन बिना बताया तो फिर कोई मार भी खा लेंगे। हम लोग आए बिना बताए आए हैं, तो अभी पता लगेगा तब की तब देखेंगे। अभी तो क्या मस्ती में तो पड़ता ही क्या नई स्ट्रैटेजी से कह सकते हैं एक्चुअली बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी है पता नहीं, आप लोगों को मजा आ रहा है, हमें मजा आ रहा है। और गाने का थीम में शराबी लड़के होते हैं, लड़के मस्ती कर रहे हैं, अपनी मस्ती में डूबते हैं और शराबी जितना बोले उतना कम है। हाँ एंजॉय करें। अच्छा, तो आपसे जानना चाहेंगे अब तक मतलब कई बार पहले भी इस तरीके के कैरेक्टर होगा, इतनी सारी फिल्में आपने देखी। आई थिंक नो वन कैन टच अमित जी, नो वन कैन टच अमित जी। अमित जी इतना मुझसे कम है। अमित जी What next after this? आप लोग बाहर पहुँच के प्रमोशन के लिए, उसके बाद और क्या होगा? इसके बाद दूसरे बार में जाएंगे, बार देखते रहेंगे। वहाँ पे भी लोगों को थोड़ा सा शराबी गाने का फील दिलाएंगे और उनके साथ भी नाचेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। एंड लेट्स सी, वहाँ पे भी ऐसी वाइब आएगी हम लोग को पूरा इंडिया। अभी वही देख रहे हैं, एक बार से दूसरे बार, दूसरे से तीसरे से चौथे।
मस्ती के साथ सबके साथ शराब पी रहे हैं, शराब को गाना सुन रहे हैं और वॉइस वर्कआउट है, तो उस हिसाब से हम लोग जाते हैं मस्ती करते हैं। बट मैं सोच रहा हूँ अभी तक आपके बाबू का फोन नहीं है, किसी पे भी क्या मैटर है? फोन नहीं है आपकी बाबू जो है आज हमने बताया नहीं ना, आज हम चुपके से निकले, वो तो हमें कल पता चलेगा, कल फिर हमारी पिटाई होगी। बट फिलहाल छोड़ो ना लड़कियों को, हम तो फिलहाल शराब पीना है, आप लोग सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बस मस्ती कर रहे हैं। तो अभी मतलब जो है वो अगर कल पता चला तो ऐसा नहीं लगता आज का पूरा नशा एक झटके में उतर जाएगा? बस आज रात एंजॉय करते, कल की किसी ने देखी है, कल सोचेंगे यार आज तो एंजॉय करें। कल प्यार का पंचनामा पक्का है मतलब? छोड़ो ना, दारू पीते शराब पीते हैं, क्या लड़कियों की बातें नहीं करनी है। मतलब आई होप कि वो सारी गर्ल जो भी आपकी तीनों की गर्लफ्रेंड है वो ये सुन रही है, मतलब आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा और तो बोल रहे हैं कि छोड़ो लड़कियों, मैंने अब और भी मतलब नहीं रहा उनसे। मतलब रहा है, लेकिन अभी शराब की नहीं है, अभी हम लोग बॉयज नाइट आउट है, हम लोग मस्ती करने के मूड में लड़कियों की बातें करते हैं, कौन लड़कियाँ कोशिश की। अच्छा अब ये नाइट आउट तो हो गया, अब इसके बाद अगला प्लान क्या है? आगे जो है आपको देखने मिलेगा वो आप अच्छा मतलब अभी वो आपको देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में क्या होगा। बात जब पंचनामे की होती है तो मेन जो कैरेक्टर है उसका तो होना जरूरी है ना। ये सही बात है, लेकिन फिलहाल तो आप जैसे देख रहे हैं तो हम फिलहाल अपना बस पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं। एक रात है जहाँ हम दुविधाओं को भूलना चाहते हैं। यहाँ पे somehow ऐसा लग रहा है कि मैं आपको टेंशन दे रहा हूँ। हाँ आप टेंशन ले रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप इतना बोल रहे हो तो मतलब कल सुबह कुछ ना कुछ तो होगा और ये न्यूज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो पक्का। एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे उन्होंने नहीं भेजा है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि पंचनामा पक्का है। अच्छा पक्का है, ऐसे ही करना लड़कियों की बात नहीं करना चाहते, मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं, मजे करेंगे। चलिए तो फिर उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से अपना ये जो मजा है वो कंटिन्यू करें और फिल्म देखते टाइम भी दर्शकों को इतना ही मजा आए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू सो मच। किस तरह का पंचनामा होने वाला है ये सेकंड पार्ट में? विल स्टार्ट विद नुसरत। इस बार एक्चुअली हमारे सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, बट फैक्ट तो ये है कि हम फिर भी लड़कियां हैं, तो जो हमारी बेसिक ट्रेट्स और हैबिट्स है वो तो सेम ही है, वो नहीं बदल सकते। मतलब करना हमें इवेंचुअली पंचनामा ही है, बट क्योंकि हम अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं, इट्स मोर इंटरेस्टिंग कि अब इस बार और क्या आ सकता है। मतलब ये नहीं था कि पहले पार्ट में सब कुछ हो ही गया, कर ही दिया, इतना कुछ उसने बोल भी दिया, अब क्या बच गया कि आप और करना चाहते हो। मतलब ये इंट्रीगिंग फैक्टर होगा आई थिंक लड़कों के लिए कि और कितना सता सकती है हमें, ये कहाँ से अब और नए मतलब इन्वेंशंस आ गए कि अच्छा इस पे भी प्रॉब्लम, इससे भी प्रॉब्लम, इससे भी प्रॉब्लम। सो वी हैव कम आउट विथ एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज के फर्स्ट पार्ट में हमारा सेकंड हाफ थोड़ा सा ड्रामा हैवी था बिकॉज हमने एक्चुअली सीरियस हो गए थे हम। इस बार हमारा सेकंड हाफ बहुत ही ज़्यादा कॉमिकल है। ऐसे नहीं कि कॉमेडी कर रहे हैं हम, बट जो कैरेक्टर्स है वो तो प्यार में है ही और उनको तो टॉर्चर हो ही रहा है, बट जिस तरह से उन्होंने किया है वो इतना फनी है कि उस पर भी आप हंस ही रहे हो। सो बिकॉज आई थिंक द रीजन वी आर कॉलिंग इट डबल एंड द रीजन वी आर कॉलिंग इट बोल्डर एंड द रीजन वी आर कॉलिंग इट ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज नाउ वी आर शेमलेसली गोइंग आउट देयर एंड सेइंग हाँ यही करते हैं। हम तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम चलो ठीक है यार लड़की है, चलो कर लो मार लो, जो करना है कर लो। सो या दैट्स व्हाई दिस टाइम इट्स फनियर एंड बिगर एंड बेटर। सुपर। सोनाली? See, she's pretty much said it all when it comes to the film. Now for me, it's different because my characters are very different. That is one basic thing, and they're different as in poles apart, like north and south. I played Riya in the first part where I think I was a bit too negative, you know. So she was a girl who was confident and Riya was glamorous and all of that. But you know, when I was even doing that, I would be like, which girls do that? You know, like have a boyfriend and then go back to the older one and then have two of them together. Oh my god, where are these girls? But then eventually I found out that there are a lot of girls like that. Coming to part 2, my character is so different. I'm playing Supriya, who is nothing like Riya. She's simple, sweet, loves to be in love, loves to give love wholeheartedly, and this is her first boyfriend, Siddharth.
and she's not that confident and she's not that glamorous. She's just a regular Delhi girl. So in that basic character, this is too much fun. First of all, casting is not my call, you know. Whatever Love Sir thought was right for the character, he casted accordingly. Coming to my personal opinion, Divyenndu was a great co-star and I had a good time shooting with him. But as Sonali said, that was my first film too. And she'd still been modeling before she signed the movie, Pyar Ka Panchnama. I was handpicked from home. Like, I was totally alienated from this entire procedure of how filmmaking is and how industry works, because I'm not even from Bombay, I was from Delhi. So I got the movie while I was there, and that's when I shifted and started shooting the movie. So the whole process was so new to me that I was just getting familiar with it. I was learning during the process. Panchnama 2 is definitely by far it's just my second movie but yeah, it's a better experience because I'm working with the same team, and to be doing my second film with the same team, it obviously makes me more comfortable. Since Panchnama 1 was more of a learning experience, Panchnama 2 was more of the application to what I'd learned in the first one. So the entire team, the girls are the same, the team's the same, and Omkar, I think so it has to do a little to the track that I'm playing in the movie, since he is my love interest. So we had a lot of moments during workshops, during readings, where we could, we had to break the ice and we had to really get familiar to each other to actually be playing that on screen. With Divyenndu, my track was that he was just a friend and I was just keeping him as a friend, and so that's the reason maybe I was not too close to Divyenndu. But with Omkar, I got more of those moments where we could really sit and have a chat about each other, and we could talk, and we fought on the sets. We've had arguments during readings, and I think so fights and arguments, it just makes the whole but the whole your friendship grows, it makes it grow more. So yeah, I think so all these things I've had it with Omkar. So yeah, I think so I'm more happy to have Omkar. But again, Divyenndu is a great actor and I have a lot of respect for him. Super. तो finally, viewers को अपने एक अलग-अलग स्टाइल में, अगर आप फिल्म को देखने आए, ऐसा कुछ अगर बोल दे अपने अलग स्टाइल में, what you're doing in the film, something related to it. ठीक है, तो start. I'm going to quote the tagline of the film, which is "Love is injurious to health." And I think हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि प्यार करना एक आदत बन गई है हम सब में, वो एक बुरी आदत बन गई है, ये हम कह रहे हैं। तो ये कैसे इंजूरियस है आपकी एकदम अच्छी खासी हेल्थ को, ये देखने आप 16 अक्टूबर को जरूर आइए। I will just say that as girls हमने लड़कों को बहुत टॉर्चर किया है और हमें बहुत मज़ा आया है। So you should just come and watch that how we have done their पंचनामा, लड़कों का पंचनामा, प्यार का पंचनामा, 16th October. This is for all those people, people who actually wanted to have Pyar Ka Panchnama 2. It was a much awaited sequel. So please come, give business to our film so we can make more and more awesome movies for you to keep you entertained. So yeah, come encourage us because we made this film for you. Super. Thank you so much. Thank you. Come. Keep coming. इसके पहले लड़कियां आई थी, उन्होंने कहा कि बहुत बजाया है फिल्म में आप तीनों को, क्यों ऐसे? बताइए जनाब। उनका काम ही है, बजाती ही रहती हैं और उनका काम तो है नहीं। मूवी में भी देखा ही आपने कैसे बजा रही है जी। तो गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, तो वो तो यही बोलेंगी। देखिए हमेशा मतलब प्यार का पंचनामा 1 में भी आपने देखा होगा कैसे वो बजा रही थी, एंड बैंड कितनी बजा रही थी हमारी, क्या हार्शर कर दिया था। प्यार का पंचनामा 2 में भी इतना लगी पड़ी है, आप हालत से देख रहे होंगे हमारी क्या हालत हो रही है, बिल्कुल बजी पड़ी है। एंड लेकिन मज़ा आता है, एटलीस्ट एक आध बार कहीं ना कहीं तो सच्चाई दिखानी चाहिए ना। तो वी आर शोइंग द एग्जैक्ट थिंग जो ये लड़कियां करती हैं, एंड for the first time in the history of Bollywood, actually the second time, Pyar Ka Panchnama and Pyar Ka Panchnama 2, we are telling you the truth, the real side. We are showing you the real side. मतलब रियलिटी से कोई दूर थोड़ी है यार, आदमी की तो बचती है रिलेशनशिप में, सबकी बचती है, आपकी भी कभी ना कभी बजी है, हमारी भी बजी है, तो आई थिंक इट्स वन एंड द सेम थिंग।
अच्छा, ये जो प्यार का पंचनामा है जी, टाइटल जो है, आप तीनों इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत बड़ा है लेकिन आई थिंक बहुत इत्तेफाक रखते हैं यार, मतलब हर आई एम श्योर आप भी सैफ रखते होंगे, अभी कैमरा के पीछे ऐसे कर रहे हैं ऑब्वियसली। आई मीन क्योंकि हर लड़का इसलिए रिलेट करता है क्योंकि एक ना एक बार तो वो पक्की बात है गुजरा ही होगा ऐसे रिलेशनशिप में, जहाँ बाय द एंड ऑफ इट आपको लगा होगा कि यार ये मतलब क्या है, मतलब मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता, और उसने पंचनामा उस लड़की का किया होगा, तो वो एक है ही चीज, वो तो है ही यार। हाँ मतलब ये बहुत रिलेट किए नहीं हम लोग काफ़ी रिलेट किए हैं, काफ़ी पंचनामा हो चुका है, हो रहा है, एंड इत्तेफाक रखने वाली बात ही क्या है, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। इतना ज़्यादा जो ये लोग अत्याचार करती हैं लड़कों पे वो काफ़ी दिखता है, और इस फिल्म में दिखा रहे हैं वाली साइड, एंड आई थिंक लड़के बहुत रिलेट करते हैं इस फिल्म से। लड़कियां भी करती हैं, अंदर ही अंदर छुपा के रखती हैं, बोलती नहीं है, वो बस ये बोलती है कि मेरी कोई एक ऐसी फ्रेंड है जो ऐसा करती है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखेगी, अपने नाम डालेंगी नहीं, और उनको पता ही है कि हर दिन हर घंटा, बस हर लड़का जो बेचारा देख रहा है उसको भी पता है कि हर घंटे मेरा पंचनामा होगा, हर मैसेज पे पंचनामा होता है। कार्तिक, आप तो फर्स्ट पार्ट में भी जी, तो इसमें क्या डबल पंचनामा हो रहा है आपके साथ? देखिए पार्ट 2 है तो थोड़ा सा पंचनामा 1 में आई डोंट नो कितना ज़्यादा लगा था लोगों को, कितना कम लगा था, लेकिन ये है कि रिलेट सबने किया था, तो जितना था वो एप्ट था सबके लिए। इस वाली में और ज़्यादा बजा रही हैं, और ज़्यादा मार रही हैं, और ज़्यादा लगा रही हैं हमारी, एंड पार्ट 2 में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के रिलेशनशिप्स में होती हैं, काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें हैं, एंड आई मीन हाँ मैं खुद भी एज एन एक्टर भी और पर्सनल लाइफ में भी ऐसे सोचने जाता हूँ तो लगता है कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, तो वो चीज़ एक है। वो प्यार का पंचनामा 2 के साथ, प्यार का पंचनामा 1 के साथ भी एक चीज़ इंटैक्ट थी कि उसकी रिलेटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि डबल तरीके से इसमें दिखा रहे हैं कि यार हाँ यार इस बार और ज़्यादा फनी, और ज़्यादा रिलेटेबिलिटी होगी। आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ हुआ है, आपके दोस्तों को लगेगा यार ये मेरी वाली भी करती है, तो हाँ वो होने वाला है। अगर आपकी बात करें ओमकार, तो आप तो बॉलीवुड से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं जी। तो मैं चाइल्ड सीनियर एक्टर था। तो आपसे इनको कितना कुछ सीखने मिला, या आपने ऐसे कुछ बताया था बॉलीवुड के बारे में, ऐसे कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, हम सब एक्चुअली एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मतलब वो एक नेचुरल प्रोसेस है किसी भी एक्टर का, तो उससे मेरा चाइल्ड एक्टर का होना उससे कोई लेना देना नहीं एक्चुअली, बिकॉज एज एक्टर्स मैं मानता हूँ ये चीज़ कि जब भी आप दूसरे एक्टर्स के साथ काम करते हो, वो भले ही अच्छे हो बुरे हो, मतलब वॉट एवर इट इज, यू लर्न समथिंग और द अदर फॉर श्योर। यू नो कोई चीज़ ऐसी होगी जो कार्तिक में होगी जो मुझे पसंद आएगी कि हाँ यार ये चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी होगी जो उसको, तो वाइस वर्सा आई थिंक हम तीनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखे, और तीनों ने काफ़ी एक्चुअली मोर देन दैट हम लोग अपना दुखड़ा एक्चुअली वैन में बहुत रोते थे कई बार, काफ़ी चीज़ों को लेकर, एक्चुअली पर्सनल लाइफ को लेकर, कभी कोई हमारी मतलब प्रॉब्लम चल रही हो, या पैसों की प्रॉब्लम चल रही हो, कभी कोई और प्रॉब्लम चल रही हो, तो कभी इसकी गाड़ी खराब हो गई, उसकी चाबी गुम गई, तो ये चीजें तो यार इट्स बिकॉज इट वाज अ फन फिल्म, दोस्ती की फिल्म थी, सो हाँ मतलब डेफिनेटली बेसिकली पंचनामा करते करते हमें लड़की बना दिया है हम लड़की बन गए आपस में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, एक दूसरे की बहुत मदद की, बट यार दोनों के साथ कैसी केमिस्ट्री थी? कोई बोलने की बात ही नहीं, इनके साथ तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, देख सकते हो मेरा भाई। किस पर करना ऑन स्क्रीन हम करते हैं कुछ बोलना ही नहीं है, हम इतने मतलब हमें कोई डायलॉग भी मिल जाए, सीन चल रहा है, उससे पहले भी मैंने भाई को एक लुक दी, मेरे भाई ने मुझे लुक दी, उधर ही हंस पड़े, और वो अलग है कि लफ्सर प्रसाद दे देते हैं हमें, उसके बाद हम उसे डांस को प्रसाद बोलते हैं, क्योंकि कभी ना कभी पड़ती है हमें, तो डेफिनेटली आप जब गलती करोगे तो पड़ेगी, तो हाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। जैसे ये बोल रहा था सनी कि ये कई बार ऐसे होता था कि तीनों के सीन्स हैं बहुत सारे, क्योंकि बॉन्डिंग है, रोमांस है, तो हम तीनों का ये कुछ बोल रहे थे, हम लोग के क्लोजेस हो गए, तो कई बार एक बार हो गया वो इंस्टेंस कि ये बैठा हुआ अब इसका क्लोज लग रहा है, हमारा हो गया है काम खत्म, एंड हमें बस क्यूज देने,
तो अब पता नहीं क्या होता था, वो मोमेंट बनता था कि हम दोनों ना एक दूसरे को अगर गलती से देख लेने, जब इसका ऐसे क्लोज लगा है और रिएक्शन इसको भी देने, और गलती से मैंने ऐसे सन्नी को देखा, उसने मुझे देखा, मुझे हंसी आ जाती थी कि और ये सोच रहा है कि इस पे हंसे है, कमीनों कुछ मार के फेंकता है। क्या होता है, हम दोनों इतना जानते हैं ना एक दूसरे को, कहीं ये दूर बैठा है या मैं इधर बैठा हूँ, तो हम इतनी सी स्माइल निकलती है, हंस पड़ते। तो वो एक लाफ्टर वाला जो होता है ना कि वो चालू हो जाता था, लेकिन हाँ इट वाज फन। तो फिल्म के बारे में इन शॉर्ट अगर व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे इन योर ओन स्टाइल, जो फिल्म है आप तीनों की अलग अलग स्टाइल, तो उस तरीके से कैसे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? कुछ विल स्टार्ट विद सनी। भाइयों बहुत दुख से हैं, बहुत कुछ आपने रिलेट करना है, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आइए और जरूर आना। प्यार का पंचनामा 2 16 अक्टूबर। अधिक प्यार का पंचनामा 1 आपने देखी थी और बहुत दुख दर्द आपने आपस में बांटे थे, और बहुत मज़ा आया था कि कोई तो कुछ लोग हैं कुछ ऐसा बता रहे हैं जो हमारी रियल लाइफ में होता है। सेकंड पार्ट के साथ भी ये होने वाला है। सेकंड पार्ट में आप और ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं, आप लोग को लगने वाला है अरे यार ये भी तो होता था मेरे साथ, ये नहीं देखा था पहली वाली में। तो सेकंड पार्ट के साथ ये बहुत होने वाला है कि सब लोग ये देखने वाले हैं कि ओ शिट ये मेरी वाली है, नहीं ये इसकी वाली है, भाई तेरी वाली ऐसी है। तो सेकेंड पार्ट प्लीज़ देखिएगा, प्यार का पंचनामा 2, एंड प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। आई थिंक अगर आप लोगों के लाइफ में वो एक रिलेशनशिप वैसा आया है जब जहां आप लोगों ने बाय द एंड बोल दिया कि बस बहुत हो गया, तो आप लोग डेफिनेटली इस फिल्म से मतलब कनेक्ट करोगे ही करोगे, बिकॉज हमने वो इश्यूज इस बार एड्रेस किए हैं जो यूजुअली हम रिलेशनशिप में एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ गर्लफ्रेंड वो चीज़ लेके नहीं आते डेली बेसिस पे, क्योंकि लगता है यार अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही है क्यों बिगाड़े, तो उस चक्कर पे फिर एक दिन फटता है आदमी या फ्रॉम द गर्ल साइड। तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली देखने मिल जाएगी। तो कई सीन्स में आई एम श्योर हर लाइन या सीन में आपको ऐसे देखते देखते आप अपनी गर्लफ्रेंड को देखोगे कि अच्छा ये वाला तो तुम करती हो, या यू विल लुक एट योर बॉयफ्रेंड एंड से कि ओके यू डू दिस। सो इट इज अ फिल्म दैट यू विल कनेक्ट टू। सो आई थिंक यू शुड जस्ट कम वॉच एंड हैव फन, सिंपल। इवन इनफैक्ट हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप सब ऑलरेडी इससे इतने रिलेटेड हैं कि प्यार का पंचनामा का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, जो लोग एकदम देखने ही वाले हैं प्यार का पंचनामा 2। तो आई एम श्योर कुछ ऐसा कुछ नया हम नहीं बोलने वाले, तो फिल्म में देखेंगे। पॉपकॉर्न खाइए और ब्रेकअप करके जाइए। पॉपकॉर्न से मुझे याद है, अपनी गर्लफ्रेंड को पॉपकॉर्न खिला दीजिए ताकि वो कुछ बोल ही नहीं, वो पूरे टाइम ना बस खाती रहे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बस बोल नहीं पाएगी। आप कंसंट्रेशन के साथ बस देखते रहिए, ये मेरी लाइफ है। चलिए इसी के साथ प्यार का पंचनामा 2। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काम करो, यहाँ से यू टर्न मारो, आगे आते जाओ आप लोग घूम जाओ ऐसा, आगे आते रहो, आगे आते रहो। बोलो बच्चे लोग, बाबू बेबी का चुना है प्यार बनना गुना है, बाबू बेबी का चुना है प्यार बनना गुना है, बाबू बेबी का चुना है प्यार बनना गुना है, बाबू बेबी का चुना है प्यार बनना गुना है, अरे बाबू बेबी का चुना है प्यार बनना गुना है। आ गया बंद करो अपनी शॉपिंग बंद करो बाबू बेबी का चुना है बाबू बेबी का गुना है प्यार में पड़ना गुना है, बाबू बेबी का चुना है प्यार में पड़ना गुना है, बाबू बेबी का चुना है।
समझदार ने आंखें खोली प्यार मोहब्बत को मारो गोली समझदार ने आंखें खोली प्यार मोहब्बत को मारो गोली अरे समझदार ने आंखें खोली प्यार मोहब्बत को मारो गोली अरे समझदार बंद करो अरे चिक चिक बंद करो बाबू बेबी का चुना है प्यार में पड़ना गुनाह है समझदार ने अपनी आंखें खोली प्यार मोहब्बत को मारो गोली बंद करो चिक चिक बंद करो अपनी चौखट बंद करो हाय हाय घर में हाय प्यार में पड़ना गुनाह है बाबू बेबी का चुना है बाबू बेबी का चुना है समझदार ने आंखें खोली मोहब्बत को मारो गोली समझदार ने आंखें खोली मोहब्बत को मारो बाबू बेबी का चुना है प्यार में पड़ना गुनाह है बाबू बेबी का चुना है प्रॉब्लम है जब तक सूरज चांद रहेगा गर्लफ्रेंड का नाम अत्याचार रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा अत्याचार रहेगा कैसे समझ आ रहा है काम करने का समय उसको जलाओ उसको जला इधर रख दो इस पे डाल बंद करो देखिए अरे तू डालना ये जलने लगा हो गया
लड़कियों ने हमारी बैंड बजा दी है, वो आई नहीं अभी तक और हमें ही स्टार्ट करना पड़ रहा है प्रेस कॉन। और मेरे तो इनफैक्ट कपड़े भी उनकी गाड़ी में तो अभी तक आए नहीं, मैं वही कपड़े पहन के हर जगह जा रहा हूँ। तो बट वी आर रियली सॉरी। लड़कियाँ मतलब हमेशा लेट कराती है, आप देख सकते हो। तो मैंने प्रूव कर ही दिया है, तो वी आर वेरी सॉरी। जी लड़कियाँ कैसी भी हो, लड़कियाँ ही होती हैं, लेट होती हैं, मेकअप करती रहती हैं और कपड़े बदलती रहती हैं, कैमरा के हिसाब से कपड़े बदलते रहते हैं अपना टाइम लेती हैं, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन आप लोग खुद नारा लगा रहे हो कि प्यार नहीं चाहिए, जी हेल्थ है लो, प्यार तो चाहिए। अब प्यार चाहिए होता है, शुरू में चाहिए होता है, बाद में नारे लगाने वाले काम करने पड़ जाते हैं क्योंकि वो मानती है नहीं। और हम लोग जितना भी चाहे प्यार कर लें, लेकिन वो क्या है, बैंड बजती जाती है, तो एक पॉइंट आता है, एक थ्रेशोल्ड होता है जो क्रॉस हो जाता है, उसके बाद आपको ये करना ही पड़ता है कि भाई अत्याचार से आगे नारे लगा के बाहर निकलो इस रिलेशनशिप से। चाहता तो हम लोग की हम लड़की उन्हें इतना भाव देती है, इतना ये करते हैं, गलती लड़कों की, लड़की गलती करती नहीं सर, हम बेबस होते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, लड़कियाँ समझती नहीं है। लड़कियाँ बस हमें निचोड़ के बस खड़ा कर देती हैं धूप में, उनको एक समझना चाहिए, इसलिए हमने प्रोटेस्ट रखा था। बहुत अत्याचार करती हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंस है कि सेम है? ऑब्जर्व काफ़ी किया है दोस्तों का, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, वो 12th में था, उसने सब्जेक्ट चेंज कर लिया। हाँ, मैंने बोला क्यों कर रहा है, कहता मैं लड़की के चक्कर में कर रहा है, वो सामने जो बैठी है बहुत अच्छी दिखती है, चेंज कर लिया और फेल हो गया। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा हूँ, जो एक्सप्लॉयटेशन लेवल होता है लड़कियों द्वारा लड़कों का, वो कितना रियल होता है? वो होता है, रियल होता है, हर लड़की को पूछो, हर लड़का रिलेट करेगा। देखिए बचपन से होता है मेरे हिसाब से, तो जब से पहली गर्लफ्रेंड आप बनाते हैं तब से एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है हम लड़कों का, और कोई ये फिल्मों में नहीं दिखाता। ये पहली एक फिल्म है प्यार का पंचनामा जिसमें लड़कों के बारे में दिखा रहे हैं कितने बेबस और बेचारे हैं, और लड़कियां कितनी मार रही रिलेशनशिप में उनकी लड़कियों की पार्स दिखा रहे हैं इस फिल्म में कि कितनी वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रहे हैं कि कितनी शक्तिशाली है, कितनी पावरफुल है कि ये लड़के को नचाती रहती है। तो वो शुरू से ही एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं बचपन से, एंड थैंकफुली हमारे पास एक फिल्म है जो ऐसा बता रही है। लेकिन फर्स्ट जो फिल्म थी प्यार का पंचनामा, उसमें तो इस हद तक दिखाया गया कि डॉगी लेवल तक पहुंच गए थे लड़के का जो स्टेटस है, ऐसा होना चाहिए क्या आप मानते हैं? यार देखिए सच है तो अब वो मतलब बताने में दिक्कत क्या है। पहुंच तो इसमें भी गए हैं, आप लोग पोस्टर पे देख सकते हो, पहुंच तो इसमें भी गए तो रियलिटी से कोई दूर नहीं है, रियलिटी में भी होता है, जैसे आपके साथ भी आई एम श्योर हो एक बार तो हुआ ही होगा, अभी भी हो रहा है। देखिए सब रिलेट करते हैं, वही बात है कि चाहे लड़कियां भी बहुत रिलेट करती हैं इस फिल्म से, लेकिन वो बताती नहीं है, अंदर छुप के बस, और ये डिनाई करती है, सोचती तो होंगी हाँ यार इतने सभी हुए। लेकिन एज एन इंडिविजुअल क्या मानते हैं, रिलेशनशिप बैलेंस होना चाहिए? डोमिनेंस फैक्टर जो होता है वो रिलेशनशिप को खराब करता है। वो बहुत करता है, और मेरे हिसाब से तो यार वीकनेस एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ सही हो जाता है। वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इनिशियल स्टेज में सब सही रहता है, बाद में आप उनको गारंटी ले लेते फिर हो जाते पंगे, फिर एक को छोड़ो दूसरे को, यही होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस चीज़ में? डोमिनेंस फैक्टर जो होता है, या मेल साइड से हो या फीमेल साइड से हो, वो कितना हैम्पर करता है रिलेशनशिप को? देखिए अगर कोई डोमिनेटिंग होता है तो वो हैम्पर तो करता है, लेकिन हम लड़के क्या हैं समझ जाते हैं कि ये लड़की है चलो जान लो, लेकिन लड़कियां क्या, आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करो उसी टाइम आपका ब्रेकअप हो जाएगा। लड़कों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, लड़कों के साथ आपको उनका शॉपिंग पे भी ले जाना पड़ता है, आपको उनको फेसबुक पासवर्ड भी बताना पड़ता है, आपको उनके घर के बर्तन मांजने भी पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि हम लड़के हैं, हम बेचारे, हम बेबस हैं। अच्छा ये रैली निकालने का आइडिया किसका था? हम तीनों का था सर। आई मीन इतना उब चुके हैं कि लगा इसी तरीके से ये समझ पाएंगे बात, मतलब औरतें वरना और लड़कियां समझ नहीं रही थी ये बात, तो हमें लगा एक पॉइंट तो अब ये लाना ही पड़ेगा कि एक प्रोटेस्ट निकालेंगे तभी हमारी बात समझेंगे। तो हमने ये सोचा, और आई थिंक बहुत लोगों ने हमारा साथ भी दिया, जैसा आप लोगों ने देखा कुछ मतलब 200-500 लोग आ गए थे हमारा साथ देने, तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी थी आई थिंक, और इसलिए करना पड़ा। इतना नहीं सोचा था, इतने सताए हुए बॉयफ्रेंड होंगे, सब आ गए रोड पे आ गए सब एकदम कि हाय नारे लग रहे थे अच्छे खासे, टेडी चलाया हमने। तो कॉमेडी का किस कैटेगरी में मानते हैं इस फिल्म को? किस तरह का कॉमेडी होगा? बहुत तरह की कॉमेडी होती है, एडल्ट कॉमेडी होती है। देखिए ये कॉमेडी फिल्म मतलब ये बहुत सिचुएशनल कॉमेडी है, जो भी इसमें कॉमेडी भी हो रही है, और काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अननेसेसरीली कुछ भी सीन नहीं डाल दिए कि यार ये इससे फिल्म को फ़ायदा हो जाएगा या ये हो जाएगा। ये पहली वाली फिल्म का भी यही यूएसपी था कि सब लोगों को लगा था ये उनकी कहानी है, वो तभी लगता है जब वो रिलेटेबल होती है, तो ये बहुत ही रिलेटेबल फिल्म है।
और सिचुएशनल कॉमेडी है इस फिल्म में। लेकिन सर फन लविंग जो कॉमेडी होती है वो चलती है, लेकिन जो एडल्ट कॉमेडी थी उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बट ये एडल्ट कॉमेडी नहीं है, मतलब ये बहुत ही नॉर्मल कॉमेडी है जिसमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जब रिलेशनशिप में एक लड़का लड़की आते हैं तो कैसी उनकी लाइफ बदल जाती है और कैसे लड़की उनकी मारती जाती है, वो एक इस फिल्म में दिखाया जाता है। इसमें जो अगर आप वैसे बात करें तो जो लैंग्वेज भी यूज़ होती है वो लैंग्वेज आपस में लड़के यूज़ करते हैं, जो रोज़मर्रा में आप पे और मैं भी अगर बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे ऑफ कैमरा या क्या, तो वो चीज़ें दिखाते हैं, बट उसमें कुछ एडल्ट एज सच चीज़ें नहीं है। और जो गाना शराबी वो भी काफ़ी लोगों के ज़बान पे चल रहा है, तो ये बार कल्चर को क्या हाईलाइट कर रहा है, क्या कर रहा है ये बेसिकली? जी, हम कोई कल्चर बार कल्चर प्रमोट नहीं कर रहे, हम बस 3 दोस्त एक अच्छी रात, एक मस्ती भरी रात गुजारने निकले। फिल्म है जैसा आप देख सकते हैं, सो वो एक मस्ती भरा गाना जो लोगों से कनेक्ट हो रहा है। आई थिंक आई एम श्योर के हर दोस्ती के ग्रुप में एक पॉइंट आता है जब आप एक फ्राइडे नाइट या कोई एक रात ऐसी होती है कि जब आप वीकेंड पे निकलते हो, तो इट इज़ वन ऑफ दैट नाइट जहां हम तीनों ये मतलब एक पार्टी पे निकले और बस एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली यारों का जो होता है, यारों के यार जिनका होता है कि इनको एंजॉय करना है, क्लबिंग होती है, यूथ का जो होता है दैट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। जैसे कि ये बोल रहे थे ना एक फ्राइडे मिलता है अकेले 3 दोस्तों को, वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे मिली है 3 दोस्तों को अकेले बिना लड़कियों के, वो वैसी वाली बात है। और शराबी गाना भी वन ऑफ इट्स काइंड है अगेन कि ऐसा कुछ प्रमोशन नहीं है कि अल्कोहल, मैं तो नॉन अल्कोहलिक हूँ, मैं पीता भी नहीं, तो ये चीज़ मतलब बस ये है कि गाना अच्छा है और झूमने वाला गाना है। काफ़ी पूछना चाहूँगा जो पार्ट 2 है कितना सक्सेसफुल एंटरटेनर होगा, मतलब कंपेयर करें तो पार्ट 1 के? देखिए कंपैरिजन तो होंगे, वो इनएविटेबल है। आई थिंक प्यार का पंचनामा 1 को बहुत अच्छा माना जाता है, सक्सेसफुल फिल्म माना जाता है काफ़ी, एंड उसको कंपेयर करना एक गलत बात वैसे होगी क्योंकि ये फिल्म अलग है, कैरेक्टर्स बहुत अलग है, तीनों नए कैरेक्टर्स हैं, कोई कैरेक्टर वहाँ से आके यहाँ पे नहीं, बस ये कैरेक्टर्स थोड़े बहुत वहाँ से लिए। एंड प्यार का पंचनामा 2 अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी होगी, अगर वो याद रखी जाएगी तो वो एक अलग फिल्म की तरह याद रखी जाएगी, और प्यार का पंचनामा 1 अलग फिल्म थी। थैंक यू सो मच। वो उनको प्यार का पंचनामा 2 और पसंद आएगी बिकॉज वी आर एड्रेसिंग 3 more न्यू इश्यूज जो अपने आप में ही
स्टोरी वाइज बहुत बोल्डली तरह से लिखे हैं और हमने दर्शाया उसको खूबसूरती से है. सो इट्स बिगर बिकॉज वी shot in a very grandiose scale and yeah, it's a fun film, total entertainment. Please come and watch it. बिगर क्योंकि हमारा इस बार का बजट बहुत बड़ा है, तो लॉजिकली उस वे में ये बड़ी फिल्म है, अब छोटी फिल्म नहीं है. बोल्डर इन द वे कि पहली फिल्म में थोड़ा सा लिहाज रख लिया था हम लोगों ने. उसने मोनोलॉग मेरे मुंह पे नहीं बोला था, उसने मेरे दोस्त के साथ जाके बोला था. इस बार हमने पूरा वो क्वेश्चन टप कर दिया है. अब वो बेशर्म होके हमें गालियाँ दे रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं कि हाँ ठीक है ये हो रहा है. एंड तीसरा क्या था, बिगर बोल्डर एंड बेटर ऑफ कोर्स इट्स मच बेटर. अब हम सीख गए ना हाउ टू बी द डेविल्स, सो वी बेटर एट. बिगर और बोल्डर है तो बेटर तो है ही है, लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है कि 4 साल हो गए प्यार का पंचनामा को आए हुए, ये पार्ट 2 आई है, तो 4 साल में हम लड़कियां बहुत कुछ और सीख के आई हैं और वेज सीख के आई हैं कि आदमियों को कैसे टॉर्चर करें. सो वी लर्न्ड न्यू वेज ऑफ टॉर्चरिंग मेन एंड आई लव इट. इतना टॉर्चर कि आप लोगों ने मोर्चा निकाल लिया. आई नो, और हमें पता भी नहीं था, जेन्युइनली नहीं पता था. अभी आके हमने फोटोज देखे हैं कि वो मोर्चे पे उन्होंने मेरी सिद्धार्थ ने मेरी एक सनी ने टी शर्ट पहनी है जिसमें मेरी फोटो है और उस पर क्रॉस है. पहले मैं फोटो देखी खुश हो गई कि वाओ ही इज वेयरिंग माय टी शर्ट एंड देन आई सॉ हाँ तीनों ने, मैंने अपने वाले की देखी और उस पर क्रॉस है. दैट्स जस्ट सो सैड. ये मोर्चा निकला है एग्जैक्टली मेरे घर के सामने जहाँ मैं रहती हूँ. हाउ डेयर ही. सो आई वाज लाइक वाज दिस अ पॉइंट दे वर ट्राइंग टू मेक टू मी. मतलब ये कुछ सबटेक्स्ट के अंदर तो नहीं था कि निकला मेरे घर के सामने से ही है कि तू सोच ले हम यहीं खड़े हैं सबके सब. सो या आई डोंट नो व्हाट टू से. आप लोगों ने इतना परेशान किया उन लोगों को ताकि वो लोग मोर्चा निकाल. परेशान करवाया गया है हमसे, हमने थोड़ी कुछ किया है. हर लड़कियाँ कभी कुछ करती है ना फिर कुछ वो हमारी बातें नहीं सुनते. सुना बनाने के लिए करना पड़ता है. इतनी बातें सुनते, इतने कुत्ते बनने. आप लड़के अगर इतनी परेशानी थी उनको तो हमने तो फिर भी कुछ नहीं बोला है. फ्रस्ट्रेशन तो अभी भी वो निकाल रहे हैं, हमारे पीठ के पीछे मोर्चे निकाल रहे हैं. और जैसे आपने बोल्डर बोला घर के सामने से, अब तो इतनी बोल्ड मूव सामने से मुंह पे, तो अब इससे ज़्यादा हम क्या करें. हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे. वी आर स्टिल वेरी हैप्पी विद देम, दे आर अनहैप्पी विद अस. सो व्हाट टू डू. But in what category will you consider this film? Is a clean comedy, fun-loving comedy? What category? I think it's a very witty, clean, relatable comedy. ये 3 शब्द मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगी. रिलेटेबल क्योंकि आप सब हंसते हो ट्रेलर देख के और आप सब फर्स्ट पार्ट में हंसे थे और सेकंड पार्ट में भी हंसोगे. एंड एज ग्रुप बहुत बड़ा है, एज एन इवन दो ये यूथफुल फिल्म मानी जाती है. आई हैव हैड पीपल हु आर 30 years 40 years who get caught up in the theatres. हम जब इंटरेक्शन करने गए थे लोगों के साथ एंड who said कि यार बाबू कहाँ है, उसे लाओ. मुझे लगा मुझे थप्पड़ पड़ेंगे, बट वो एकदम खुशी से ग्रीट किए थे मुझे एंड दे वर वेरी हैप्पी कि दे कुड रिलेट टू आवर स्टोरी. तो एज ग्रुप भी बहुत वाइड है, सो दैट्स व्हाई आई वुड से इट्स अ फुल एंटरटेनर, सो क्लीन एंटरटेनर. और मेरे ट्रैक में तो पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट है और आई थिंक बहुत सारे लोग उस चीज़ से रिलेट करेंगे कि मतलब शादी तक बात पहुंचती है और यू नो फैमिली है तो फैमिलीज देखेंगी, पेरेंट्स की एज के लोग रिलेट करेंगे और लॉट ऑफ अदर गर्ल्स ऑल्सो. तो इट्स वेरी वेरी क्लीन. रियल लाइफ में आपने भी देखा इस तरह के पंचनामे होते हुए देखिए इस प्रकार की लड़कियाँ. आप आई थिंक आप पूछना चाह रहे हैं कि हमने किया है कि नहीं. ना देखिए इनको भरोसा है हमने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है. चलिए आया कोई तो आया. सब आदमी है बाय द वे, ये सब कैमरे. आई नो लड़की दिख रही है जो चुप खड़ी है. 2 लड़कियां हैं जो हमारी साइड पे है. इसके लिखती जा रही है. आई होप दैट दैट चलो आपकी खुशी के लिए. हाँ मैंने देखा है लड़कियों को परेशान करते हुए, हाँ मैंने देखा है लड़कियों को पंचनामा करते हुए. हाँ चलो मैंने भी पंचनामा किया है लाइफ में, तो क्या सदियों से आप करते आए हो ना. इट्स योर टर्न, टेक इट. इस तरह से इतना करोगे इतना एक्चुअली बोला जाए तो हमने भी शुरू किया है बिकॉज जितने टॉर्चर उन्होंने किए है और जितनी मैनिपुलेशन किया है हमें इस हद तक धकेलने को, आई थिंक इट्स वेरी वेरी लेस. वी हैव जस्ट begun now. एंड अगर पहले नहीं अगर पहले हमको पता होता जैसे और एक सेकंड लड़के बेचारे गिफ्ट देते हैं तो गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट नहीं देंगे तो किसको, पड़ोसन को जाके देंगे. एक बात बताओ, अगर बॉयफ्रेंड के पास पैसा, अगर बॉयफ्रेंड कमा रहा है, अगर बॉयफ्रेंड के पास पैसा है तो किस पे खर्च करेगा. ही हैज टू शेयर इट विद समबडी. सो वी आर गिविंग हिम that opportunity that he can share his life, his money, his whatever with somebody, with his love, his care. तो अगर हम पे भी नहीं करेगा तो किसके साथ, किसी और के साथ करेगा, किसी और लड़की के साथ करेगा, फिर ही इज हैप्पी.
हाँ तो फिर जाए वही तो ठीक है, फिर चले जाओ। तो फिर हमें भी फुटबॉल लड़की मिल जाएंगे। और सही वो सुना ना पहले पार्ट में था ना डायलॉग कि लड़कियों के लिए ऑप्शंस होते हैं। डोंट वरी। थैंक यू।